پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں ہندوستان کے مشہور و مقبول نقیب جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لیں اور جلد از جلد پروگرام کا آغاز کر دیں۔ جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب کا استقبال ذرا نعروں سے کر دیں۔ جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب، واہ واہ، زندہ لوگ آئے ہیں۔ مجاہد حسنین حبیبی صاحب، نقیب اعظم ہندوستان مجاہد حسنین حبیبی صاحب، سیمو خان، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، سبحان اللہ، جزاک۔ معزز و معطر علماء کرام، محترم سامعین باتمکین، پردہ میں بیٹھی خواتین امت سوغات سلام کے ساتھ اپنے اس حقیر فقیر بندے بے توقیر ناچیز مجاہد حسنین حبیبی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول کیجیے اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، 3 سال کے بعد اس کبیر پور کی سرزمین پہ دوبارہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ میں رب کا شکر گزار ہوں اور ان کے بعد میں اپنے بڑے بھائی ہمارے بہت ہی محسن علی جناب سیمو خان صاحب، سیمو خان ایک ایسے شخص نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے۔ یہ تو قدرت چاہتا ہے تو دولت و ثروت سے خوب نوازتا ہے۔ تو میرے دوستو، سیمو خان ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے اور ان کے اندر اتنی بڑی خاکساری انکساری یہ ہے، بڑوں کی تربیتیں اتنی ملی ہے کہ میرے دوستو ادیبوں سے عقیدت کی نگاہیں جھکا کے ملا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میں ایک چیز جو وارڈ کونسلر کا جو الیکشن چلا جس میں بہت کامیابی ملی اور صرف کبیر پور نہیں بلکہ بھاگلپور کے سارے لوگوں کی تعاون رہی اور دعائیں شریک رہی اور انہیں میں سب سے پہلے چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام سامعین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو آپ کے حق میں اچھا فیصلہ کر سکے، آپ کی خاطر کہیں بھی جا کر میرے دوستو ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں سیمو خان کے صرف اندر نہیں بلکہ ان کے گھر کے ہر فرد کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان کے بعد جہاں یہ مبارکباد میں پیش کرتا ہوں وہی غم میں ڈوب کر نہایت ہی افسوس کے ساتھ صد افسوس کے ساتھ میں اس تعزیتی کرتا ہوں اور ایک یہ ہمارے سامنے چہرہ منظر امام عرف چننا خاں کا ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، آج وہ ہمارے بیچ ہمارے ہم شاعروں کے درمیان وہ موجود نہیں۔ میرے دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستو جلد سے جلد اس مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے، میں آپ کے صبر کا امتحان نہ لوں۔ استاذ الاساتذہ میرے دوستو جن کے نگاہوں کے سامنے الفاظ کے دفتر طواف کرتے نظر آتے ہیں، ایسے قوافیہ کا یہ استعمال کرتے ہیں جس موضوع کو چھو دے تو ان کے اندر چھوٹا پن آ جایا کرتا ہے، ایک منفرد انداز ہوا کرتا ہے۔ یہ کہیے کہ چلتے پھرتے لائبریری کا نام ہے، چلتے پھرتے ایک ادب کے کالج کا نام ہے، یہ سمجھے کہ اپنے آپ میں ایک ادب کا ایک ہائی کورٹ ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نام کوئی اور نہیں، آپ سب کے مشفق، ہم سب کے مشفق کرم فرما مربی تعلیم علی جناب اسجد ناظری نظر صاحب کی شخصیت ہے جو مجھ جیسے ناچیز کو اس مائک پر بلا کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عمر تمام ہوئی، میں اپنی نسلوں کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا بے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو نظامت جیسے بڑی ذمہ داری کو سونپ کر مجھے شکریہ کا موقع دیا۔ آئیے میرے دوستو اب بات چلے، ایک آدھ ہاتھ چل جائے
माशाल्लाह मेरी निगाहें दाएं जानिब भी देख रही है, बाएं जानिब भी देख रही है, और मेरी निगाहों के सामने ताहत नजर मेरी नजर जहां तक जा रही है सिर्फ मजमा ही मजमा नजर आ रहा है। मुझे पता है कि अररिया, पूर्णिया, नौगछिया और बिलखुसूस मुंगेर की सनाती सरजमी से जो वलियों की धरती है, वहां से जमीयत तलबा का काफिला एक वक्त यहाँ आया, और बहुत बहुत दूर दराज से उन साथी का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वहां से मुसाफिर तय करके सिर्फ ये नाते रसूल के सदके यहाँ आए हैं नाते रसूल सुनने के लिए। इन तमाम के आने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए मेरे दोस्तों, अब आइए, आप ज्यादा परेशान होंगे कि मुझे फहरिस्त बताई जाए कि कौन कौन शोरा तशरीफ लेकर आए हैं, कौन कौन स्टेज पर मौजूद है, तो मैं भी आपको बताता चलूं। मैं आइए सबसे पहले ये बताता चलूं कि हमारे सीमू खान साहब ने तमाम तर सफरों को इतना आसान कर दिया है। मेरे दोस्तों, इस दौर के अंदर जहां जहां पुरफितन माहौल है, जहां लोग ट्रेन में सफर करते हुए डरते हैं, थर्राते हैं, खौफ करते हैं, माँ तो यहाँ तक के नजर आती है सजदे में कहते हुए कि जब मेरा बेटा कोई वापस आ जाता है तो माँ सजदे शुक्र अदा करती है कि रब्बा तू मेरे बेटे को नई जिंदगी देकर मेरे घर तक लौटा दिया, मेरी आगोश तक लौटा दिया। इस पुरफितन माहौल के अंदर भी मेरे दोस्तों, जहाँ हर तरफ दहशत है, खौफ है, इस आलम में भी कि आपको बताता चलूं कि बड़ी दूर दूर सफर करने से आपको सीमू खान ने बचा लिया, कबीरपुर के बाशिंदगानों ने बचा लिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के कमेटी को, बिलखुसूस सीमू भाई को, कि आपके सफर को इतना आसान कर दिया कि मैं आपको बताता चलूं कि उड़ीसा की सरजमीन आपको कटक भुवनेश्वर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ का एक नुमाइंदा शायर काफी जिस्म जुस्सा के एतबार से मजबूत, दुश्मन रसूल के छाती पे अगर चढ़ जाए तो मेरे दोस्तों उसके छक्के छूट कर रह जाए, है कि नहीं। वहाँ का एक नुमाइंदा शायर इतना अच्छा अजीम पढ़ने का लबो लहजा, क्लासिकल आवाज, जब बंदे खुदा नाते रसूल झूम के पढ़ता है तो मेरे दोस्तों सीधे रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पे अटैक करने का हुनर उन्हें खूब मालूम है। आप समझ गए होंगे कि ये नाम जनाबे तारीख कमरुल इस्लाम कमर उड़ीसा का है। आप बानी मोहतमी में एक इदारे के लिए मदरसा उमर बिन खत्ताब इनका एक इदारा चलता है। मेरे दोस्तों, वहाँ की शायरी की लेकर आपके पूरे शायरी के साथ यहाँ मौजूद है। उसी के साथ साथ मेरे दोस्तों, आपको उड़ीसा भी, आप वहाँ चलिए, अजीम एक धरती जिसे दयारे शिबली कहा जाता है, आजमगढ़ कहा जाता है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अल्लामा शिबली नौमानी ने सबसे पहले सीरत नबी किताब लिखी। ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर मिस्र के अंदर आज भी निशान में उस किताब का शुमार होता है। उस सरजमीन की खुशबू लेकर, जिस सरजमीन ने ऐसे ऐसे शहरुल हदीस को पैदा किया है, ऐसे ऐसे अदीबों को पैदा किया है जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अल्लामा सुहैल इकबाल ने एक शेर कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। मेरे दोस्तों, दयारे शिबली से आया हुआ एक शायर जनाबे शाबान बिन खैराबादी साहब मौजूद है पूरे शान शायरी के साथ। देवबंदियत हल्के के अंदर जो पढ़ने का तरीका और सलीका किसी ने सिखाया है तो जनाबे दिल खैराबादी ने सिखाया है। मेरे बड़े भाई है, ये पूरे शान शायरी के साथ मौजूद है। मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ उनके एक और भाई है, पहली बार कबीरपुर भागलपुर की सरजमी पे लोग समाप्त करेंगे, जनाबे सलमान जिगर खैराबादी। इंशाअल्लाह पहले राउंड में और पहली फहरिस्त के तौर पर इंशाअल्लाह उसकी बरकत शायरी से, बाबरकत शायरी से इस बाबरकत मुशायरे का हम आगाज करेंगे, क्योंकि मुझे पूरे कॉन्फिडेंस है, पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मुशायरा यही से उठ जाएगा। वो भी शान शायरी के साथ मौजूद है। मेरे दोस्तों, एक लहजा जिसे कौन नहीं जानता, पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, बनारस की सरजमी पे जाकर मेरे दोस्तों जो अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया, सबसे ज्यादा मुशायरा करता हुआ नजर आया। मेरे दोस्तों, कौन नहीं जानता, जनाब फारूक दिलकश साहब मौनाथ भंजन तशरीफ ला चुके हैं, और एक चेहरा आपके दरमियान मेरे बाएं जानिब बैठा हुआ है। आप इन्हें देख रहे हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो यूपी के कम और बिहार के ज्यादा नजर आते हैं, बिलखुसूस भागलपुर उनका घर नजर आता है। आप समझ गए होंगे कि ये नाम जनाब ताबिश रेहान का है, वो भी मौजूद है। इंशाअल्लाह उनकी शायरी को आप समाप्त करेंगे। मेरे दोस्तों, उसी के साथ
साथ साथ मुंबई उरूस अल बलाद जिसे कहा जाता है, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने वाला शायर, रहने वाला बस्ती का लेकिन मुकीम है महाराष्ट्र की सरजमी पे। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े फजलों के मुशायरे के अंदर, बड़ी बड़ी नादिया मुशायरों के अंदर, बड़े बड़े जलसों के अंदर अपनी शायरी, अपने लबो लहजा, अपने तेवर का लोहा मनवा लेता है, जिसे आली जनाब असद बस्तवी के नाम से दुनिया याद करती है। आप देख रहे हैं कि वो भी तशरीफ रखे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर कोई नाम छूट जाए तो मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सीतामढ़ी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे छोटे भाई भोजपुरी के शहंशाह जनाब अकील गौहर साहब के थरिया भी सीतामढ़ी मौजूद है, और बिहार का ये लाल जिसे आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी वही का हूँ। और इंशाल्लाह मैं नुमाइंदगी अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआएं रही तो मैं सिर्फ सीतामढ़ी नहीं बल्कि पूरे बिहार की नुमाइंदगी इंशाल्लाह बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कोशिश करूंगा। अगर दिल खैराबादी जैसे बड़े शायरों का दस्ते शफकत पड़ जाए और ताबिश रेहान साहब, असद बस्तवी साहब, तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत जल्द मुझे जाने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद आइए साथ ही साथ हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर एक तरह से समझिए जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब मुस्तफी कासमी मौजूद है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसी के साथ साथ हमारे भाई साजिद साहब जो सूरत से तशरीफ लाए हैं, ये तमाम तर चीजें, ये तमाम शख्सियात यहाँ मौजूद है। एक बात कहना चाहता हूँ, 2-3 मिनट आपका और जाया करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, अलिफ का नाम लखा जानता हूँ, अकाबिरीन की जूतियों में मुझे जगह मिला है और आज भी मेरा मकाम इनके जूतियों में है। ये तो इनका हुस्न ज़न है कि ये लोग मुझे आगे बिठाते हैं। ये निजामत का जो होता है वो मजबूरन मैं यहाँ बैठ जाया करता हूँ, वरना आज भी मेरा मकाम मेरे दोस्तों इनके जूतों में हुआ करता है। जब से इनके जूतियों को अपने सर के ताजे शाही की तरह सजाया, मैंने पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज ये कुल हिंद नातिया मुशायरा का जो बैनर आपके पीछे लगा हुआ है, तमाम तर लोगों को सिमू खां साहब ने बुलाया है। एक बात इस स्टेज से एक पैगाम, एक मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पे मेरे दोस्तों न बरेलियत की बात चलेगी, न सल्फियत की बात चलेगी, न देवबंदियत की बात चलेगी। मेरे दोस्तों बात चलेगी तो सिर्फ एक इंसानियत की चलेगी। और आपको नाते रसूल सुनना है तो मेरे दोस्तों आप ये साबित करके बता दीजिए कि मजहब के उस ठेकेदारों को जो मजहबी चोला पहनकर नाम पर धब्बा लगाते हैं, मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह न बरेली बन के सुनना है, न देवबंदी बन के सुनना है, नाते रसूल सुनना है तो सिर्फ एक मोहम्मदी बन के सुनना है इंशाअल्लाह। आप ताली नहीं मारे, सुभान अल्लाह से स्वागत करें। मेरे दोस्तों इस दौरे फितन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे दोस्तों मजहबी चोला पहनकर इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी मेरी निजामत के अंदर देखे मैंने इस तरह की कहीं बात कहने की कोशिश नहीं की है। मैं इतना जानता हूं कि वो कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, वो कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, हमें वो खबर से भी बाहर निकाल सकता है। अगर खुदा का करम हो तो एक जाहिल भी अदब का सारा समंदर डाल सकता है। मेरे दोस्तों मुझे मालूम है कि बरेलियत और देवबंदियत करने से कोई काम नहीं चलेगा। इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात है आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुझे मालूम है आकाए नामदार मदीने के ताजदार खाना के दुर्रयतीन लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों से नफरत की थी, गुनाहगारों से नफरत नहीं की थी। मेरे दोस्तों जुल्म से नफरत की, जालिमों से कभी नफरत नहीं की। मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से हर शायर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके शायरी के अंदर एक अच्छा पैगाम होना चाहिए, एक अच्छा मैसेज होना चाहिए। आपकी शायरी बिल्कुल इंशाअल्लाह फसाहत और बलागत से लबरेज हो, नाते रसूल के सांचे में हो। अगर आप इस्लाही शेर कहना भी चाहे तो इस अंदाज का हो जो डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कभी कहा था कि न दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का मैंने दौरा किया, शिया के शायर से मिला तो अपने शियत की नुमाइंदगी करता हुआ ये नजर आया कि काले कपड़े नहीं पहने हैं तो इतना कर ले, एक जरा देर को कमरे में अंधेरा कर ले। मैं बरेली के शायर से मिला नसीर बनारसी से तो उन्होंने कहा कि या नबी दिल से जो कहते हैं न छेड़ो उनको, उसको जज्बाते मोहब्बत ने उभारा।
मैं देवबंदी के शायर बहुत मजबूत से मिला नदीम नैयर से, तो उन्होंने कहा कि अहले बिदात को बुरा कुछ भी न कहिए नैयर, वो नहीं जानते ईमान की हकीकत क्या है। मेरे दोस्तों, ये तमाम तर बातें अपनी जगह है, लेकिन इन तमाम बातों को खत्म करते हुए वक्त के बड़े शायर तरन्नुम के शहंशाह जनाब दिल खैराबादी ने पूरी वजाहत के साथ फरमाया कि मेरे दोस्तों, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारे कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। वो शौबा हो का उतबा बोले हम छुप छुप के सुनते हैं, बड़ा ही पुरकशिश अल्लाह का कुरान होता है। मेरे दोस्तों, बात नाते रसूल की चलेगी, यहाँ नाते रसूल पढ़ा जाएगा। आपको देवबंदी बरेली सल्फी बन के नहीं, सिर्फ मोहम्मदी बन के सुनना है। आप मुझे इजाजत देते हैं, अपने पीछ पे आ जाओ, नाते रसूल से आगाज करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का हुक्म हुआ, हमारे भाई सीमू साहब अगर आप इजाजत दे दे, थोड़ी सी तवज्जो दे दे, तो आपकी दुआएं बटोरने की मैं कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद सारी चीजें आप भुला सकते हैं, ये चीज आपको मेमोरी में रखने की मैं कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल के एक चराग, एक चिंगारी लेकर जो आया हूं, इंशाअल्लाह उसको शोला बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपने दुआएं दी। मैं तमाम असातिज़ा किराम जो मेरे सीनियर शायर हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि भाई अगर मैं कुछ बोल दूं, कुछ शेर अच्छा सच्चा लगे, तो थोड़ा आप भी मुझे दुआओं से नवाज दें, अपनी दादों से नवाजें। अगर आप नहीं नवाजेंगे तो मैं भी छोटे माइक पर बैठूंगा, तो मैं भी दाद देने में कंजूसी कर सकता हूं। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मेरा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। जब दोनों का मामला चलेगा तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा। सीमू खान साहब, मैं एक बात बताऊं कि अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहक़ीक़ तमाम तर हमारे साथियों ने और असातिज़ा किराम का हुक्म हुआ, मैं यही से आगाज करना चाहता हूं, और उसके बाद सलमान जिगर खैराबादी से इसमें शायरी का आगाज करना चाहता हूं। नातिया शायरी का आगाज यहीं से शुरू हो जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि मुजाहिद हसन हबीबी जब तसलसल में आ जाए, अपने रो में आ जाए और यूं मेरा हाथ उड़ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि इन्हें गांधी जी और पैसे की और नोट की जरूरत नहीं, सिर्फ इन्हें सुभान अल्लाह की जरूरत है। अगर सुभान अल्लाह का वोट डाल देंगे तो इंशाअल्लाह मुजाहिद हसनैन हबीबी का दामन भर जाएगा और मैं बहुत खुश होकर जाऊंगा। अगर आपने दाद से नहीं नवाजा तो बड़ा दुख होगा मुझे। आइए मेरे दोस्तों, इस बात बताता चलूं कि हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करने लगती हूँ। हजरत आमना ये भी फरमाती है कि रात के तारीखियों में जब सोती हूँ तो चांद सितारे मुझे सलाम करते हुए नजर आते हैं। जब बाद धूप में बड़ी धूप की तपिशों में निकल जाती हूँ तो बदनियां मुझे साया करती हुई नजर आती है। हजरत आमना ये कहती है कि जब मैं कुएं में पानी लाने जाती हूँ अपने सहेलियों के साथ, तो कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी ये तो बता, तेरा बदन इतना महंगा क्यों है, तो इतना महंगा इधर कहाँ से लाई है, बता तो सही इतना महंगा इधर कहाँ से लाई। हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर मैं क्या बताऊं, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मेरे बदन में आया है, मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, मेरे घर का महकना तो दूर की बात, मैं जहां कूद जाती हूँ वो जमींदार खुशबूदार हो जाता है, वो जमीन खुशबूदार हो जाया करता है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूए जमीन पर अपने हबीब को पैदा किया तो सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डाल दी, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डाल दी। मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को सादिक बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अरे अल्लाह ने काल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को साकिया बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साहिया बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजुल मुनीरा बना दिया। अरे अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, अरे नबी को सामिर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुजूर बना दिया। अरे अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को नईर बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नसीर बना दिया। अरे अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना
दिया, अल्लाह ने हाँ लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया, अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है मेरे दोस्तों। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। इंशाअल्लाह आप लेकर सुने, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश और पता नहीं क्या क्या, भागलपुर की बेहतरीन समातों के हवाले माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मेरे बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, दाद माशाअल्लाह उधर से ट्रांसफर किया मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जनाब दिल खैराबादी साहब अगर किसी की शायरी पे नवाज दे तो उनकी शायरी मुस्तनद हो जाया करती है, उनके शायरी का मेराज हो जाया करता है। तो माशाअल्लाह ये बैठे हुए हैं। आइए मेरे दोस्तों एक शेर पढ़ के मैं चाहता हूं कि मुशायरे का बिल्कुल इसी अंदाज में उठा लीजिए ऐसे, और सलमान जिगर इंशाअल्लाह भागलपुर की सरजमी से उठे और हमारे जेके मीडिया, अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता जेके मीडिया को। रात की तारीकी में भी देखिए तो उनके दुश्मन भी कंबल के नीचे घुसकर और मोबाइल को ऑन करके डाटा को जेके मीडिया की कलाकारी और फनकारी को देखते नजर आते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इनका बड़ा कमाल होता है कि हम जैसे छोटे मोटे लोगों को पूरी दुनिया में घुमा देते हैं। मैं चाहता हूं कि एक नाते रसूल पर हूं। अभी हिजाज़ कराम का काफिला गया और जाके आ भी रहा है, ये तसलसल जारी भी है। एक नात पढ़ता हूं। साजिद भाई आप सूरत की सरजमी से आए, बहुत खूबसूरत से शहर से, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी सी और सच्ची सी शायरी नाते रसूल के सुना रहा हूं। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए इस नाते रसूल पढ़ रहा हूं। अब देखो एक शेर पढ़ता हूं। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। एक शेर सुना होगा आपने कि ये फसाना है मोहब्बत बस, क्या कहते हैं कि ये फसाना है मोहब्बत बस, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छुके आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना है मोहब्बत बस, जुबान भीग रहा क्या, इसे तुम ही कर सुनाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। इसको रख ले और शेर समाप्त कर ले। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। दिल भाई अल्लाह का करम है, मुझे याद है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में गया, बहुत बोला, लेकिन पहली मर्तबा मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ कि मैं खुद पानी पी लिया। ये भागलपुर के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोगों अच्छे को पिलाते हैं, तो मेरी क्या हैसियत है। अब इंशाअल्लाह ताजा दम हो गया हूं और थोड़ा सा इंशाअल्लाह इस्तकबाल कर लीजिएगा। अगर आप नहीं बोले सुभान अल्लाह, कोई ठीक नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं कि माइक लेके मैं कूद भी जाऊं। अगर माइक लेके मैं कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसा 1.5 टांका बना भी सकता हूं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इंशाअल्लाह मुझे बहुत फौकियत हासिल है कि इन तमाम शायर जो है पूरी दुनिया में सफर करते हैं, लेकिन कुदरत ने इनको भी वो सनद से नहीं नवाजा है जो सनद मुझे एकदम जुदागाना मुनफरिद सनद से अल्लाह ने नवाजा है कि अगर 50 के मजमे भी मैं लंगड़ाता हुआ नजर आता हूं तो हर फर्क कहता है ये मुजाहिद हबीबी जा रहा है, ठीक है ना। मैं एक शेर पढ़ता हूं। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात। बोलो भाई मुंगेर के लोग किधर चले गए, उठा लीजिए, बता दीजिए इंशाअल्लाह। और इधर के लोग भी बोले भाई इधर के इंशाअल्लाह मेरा पूरा समर्थन करे, इतना समर्थन करे जैसे सीमो भाई का समर्थन करके आपने एकदम ऊंचा बिठा दिया। मेरा भी समर्थन करने की कोशिश करें, पूरा सपोर्ट करें। शेर देखिए, जो मदीना हम भी जाते, खैराबाद का सफर कर रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, 1.5 टांग के साथ, बड़ी मसरूफियत के बावजूद भी, तो इंशाअल्लाह आपको लगे कि इंशाअल्लाह सफर मेरा आसान बनाने की कोशिश करें। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, अरे वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। अरे मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। और एक शेर देखे, यहाँ मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, आय हाय बोल दो मेरी जान, सुभान अल्लाह। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती।